Hello everybody and welcome to this wonderful platform of My Classroom. So this is me, your teacher, your mentor, Tanisha ma'am, and today we will be discussing about biology questions which came in your class 9th NSO examination, and the paper that we would be discussing today is of 2021-22. तो इससे पहले कि हम आगे जाकर माय क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में ये क्वेश्चंस इजी वे में डिस्कस करेंगे सो दैट इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट फॉर योर नेक्स्ट 2023 एज अ टारगेट. Let's look into certain details that we need to look into before we jump into the question paper. सबसे पहली चीज जो गाइडलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आई एम गोना गिव यू स्पेस सो दैट यू कैन इजीली लुक इनटू द गाइडलाइंस. Generally, what happens when a student gets the question paper, the first important thing that happens or that comes into the mind, which of course came into my mind as well, कि यार पेपर देख लेते हैं फटाफट, पेपर देख कर फटाफट कर देते हैं. What we ignore is these guidelines. These guidelines are very important. दो एक चीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा that in case of your NSO examination, there is no negative marking. No negative marking. But there are certain things which need to be taken care of, like what pencil, what pen we are supposed to use, how to make sure that all the answers are marked correctly. पहले एक बार हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता कैसा है. Generally, the question is divided into your 3 sections. 3 sections में आपके पास सबसे पहले आता है लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं. Similarly, then you have a science जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. We have 35 questions. प्लीज अंडरस्टैंड, जो ये लॉजिकल रीजनिंग और साइंस सेक्शन है ये सारे के सारे 1 मार्क ईच है. दीज आर ऑल योर 1 मार्क ईच. 45 क्वेश्चंस हुए ये 1 मार्क ईच. Then we have achiever section. Achiever section itself explains that yes, this is a question जिसमें आप थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके सोच कर आंसर देंगे. इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड पर क्वेश्चन इज ऑफ योर 3 मार्क्स. ये सारे 1-1 मार्क के, ये 1-1 मार्क के, ये 3 मार्क ईच. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जब आपको सबसे पहला इंटरफेस मिलता है ना जिसमें यू हैव टू फिल अप द फॉर्म, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू केयरफुली राइट डाउन योर नेम. Say for example, if my name is Tanisha, I would be writing it like this. Clearly. I would be writing my name very clearly. Congested होके नहीं लिखना है because you have to ensure कि जो first interface है उसमें सारी information अच्छे से fill up होनी चाहिए. You have to write down your name, your school code, which is of course given in your admission card, and then your class, roll number, as well as your mobile number, parents' mobile number. It has to be clearly mentioned on a sheet which is known as your OMR sheet. OMR sheet is one sheet जिसमें छोटे 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 से circles होते हैं which you have to fill it up with your black या फिर blue ball point pen से, ink pen से नहीं, ball point pen से, and yes with the help of HB pencil also, dark HB pencil अच्छे से उसको गोल करना है. यही सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की कि आपको HB पेंसिल यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज कर सकते हैं. नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि ये एक क्वेश्चन उसमें चारों आंसर्स आपने फिल कर दिए. हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा, लेकिन यू हैव टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर व्हेन यू फिल अप द फॉर्म. इफ इट इज लाइक दिस, इफ इट यूजिंग पेंसिल, आपको ऐसे 4 सर्कल्स दिखेंगे. आप ऐसा मत करिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये वाला आंसर है आपने इसको फिल कर दिया, what then you want to do, you are using a eraser, उससे इरेज करके फिर आप दूसरा फिल करेंगे. आप वहां पर एक ब्लैक इंप्रेशन तो छोड़ चुके हैं because these OMR readers are very sensitive. Even the slightest of your ball pen का ink or your HB pencil का mark, they can easily detect it. Of course, then it will not be taken as an answer. So वहां पर आपको rough, in order to do the rough work, there are certain sections given also. If you want to do an R&D and think कि हाँ ये आंसर मैं बाद में मार्क करूंगा तो आप नीचे आंसर लिख सकते हैं. लेकिन ये वाला जो मार्किंग होता है जैसे कि ये दिख रहा है, if you can see it here, this one has to be the final one. This one has to be final one and ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल होना चाहिए. Let me circle it for you. It has to be very nicely circled up like this. Completely circled. Circle means circle. So this is the general thing, or these are the general things which you are supposed to abide, and इसी basis में हम आपका question paper आगे solve करते हैं. Let's quickly look into the question paper now.
science section. So the first question of your NSO paper, previous year question paper, that is of your 2021-22, सबसे पहला question है related to your crop production and management. So the first question is saying that you have to identify or select the option in which एक राबी क्रॉप है और एक खारीफ क्रॉप है. उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा खारीफ और राबी क्रॉप कौन सा है. राबी is the one which is generally called as your winter crop. And Kharif is the one which is actually called as your monsoon crop. राबी के केसेस में जनरली जो आपको क्रॉप्स मिलते हैं दे आर मेजरली योर पल्सेस. तो पल्सेस में सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं पी इज योर राबी क्रॉप. खारीफ आपका सोयाबीन हो गया है. व्हाट अबाउट मस्टर्ड एंड लिनसीड? मस्टर्ड एंड लिनसीड दोनों के दोनों आपके राबी क्रॉप है और ये सारे के सारे कॉटन, बाजरा, ग्राउंडनट, मेज, दे ऑल आर खारीफ क्रॉप. तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि इसमें से कौन से राबी क्रॉप है और कौन से खारीफ क्रॉप्स है, सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑफ कोर्स योर पी एंड सोयाबीन. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू योर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. Then we have your next question. I'm going to give you space so that you can have a clear look. Next question is from your very interesting chapter, that is why do we fall ill? Why do we fall ill chapter में क्या क्या questions है एक बार फटाफट देख लेते हैं. आपके पास 3 कॉलम्स है. आपने तीनों कॉलम्स को मैच करके बताना है which is the correct matching with respect to column 1, 2 and 3. थोड़ा सा let's try to make a kind of a net all together. सबसे पहले हम आते हैं कॉलेरा के बारे में. कॉलेरा is a disease everybody knows, so we need to identify cholera होता किससे है. Cholera of course it happens, bacterial disease है ये bacterial disease है और होता किससे है? Of course with your contaminated food and contaminated water. Contaminated food and contaminated water से cholera disease होती. दूसरा, we have a disease called chickenpox which is your virus. Virus cause करता है a viral infection that you have the chickenpox. और ये chickenpox कैसे spread होता है? How this chickenpox spreads? सबसे important चीज is by your direct contact. तभी बोला जाता है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया है तो जनरली दैट किड और दैट पर्सन इज बिट आइसोलेटेड बिकॉज द रीजन इज दैट बिकॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इसके चांसेस बहुत ज़्यादा फैलने के हो जाते हैं. सिमिलरली इट हैपन्स विद दी इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दी एयर के थ्रू भी ये बहुत इजीली स्प्रेड हो सकता है. देन वी हैव पोलियो. Polio is a disease which generally it's a viral disease. अब हमको ये पता करना है कि पोलियो होता किससे है. Polio can easily, okay, agreed, it's a viral disease. It's a viral disease. Polio can easily spread contaminated water. Polio easily spread हो जाता है. And also when we talk about your polio, at times polio can easily spread through air also. जैसे आप कांटेक्ट में आते जाते हो, एनवायरमेंटल कांटेक्ट में आ जाते हो, by those factors also polio can spread. But majorly जो पोलियो होता है, पोलियो का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो सबसे प्राइमरीली होता है, it's of course your contaminated water. Then we have your amoebic dysentery. Amoebic dysentery is your प्रोटोजोन. दिस प्रोटोजोआ कॉज करता है एंड ऑफ कोर्स ये किसकी वजह से होता है? अमीबा है. डेफिनेटली कंटैमिनेटेड वाटर एंड ऑफ कोर्स योर कंटैमिनेटेड फूड. अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन गिवन अबव along with the options here are this one. So this is the correct answer with respect to your why do we fall ill chapter. Let's quickly move on to the next question.
Next question, it's also very interesting because it is more importantly talking about the conservation of plants and animals. तो जब हम conservation of plants and animals के बारे में बात करते हैं, we are predominantly talking about biosphere reserve, and we have certain sanctuaries also, bird sanctuaries also. There are certain places where there is not even allowed कि कोई human उसके अंदर जा पाए. उस एक core zone में, एक core area में एक ऐसा area होता है जहाँ पर human का intervention नहीं होता है. Let's quickly look into the question and let's try to find out the solution in a very easy way. Read the given sentences and select the option that correctly fills the blanks in any two of them. First, let's try to fill up the blanks and then we'll look into the answers lately. First, zoological parks, botanical gardens, seed banks are dash method of conservation of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए जनरली दो मेथड होता है, एक एक्स सिटू होता है और एक इन सिटू होता है. So by creating zoological park, botanical gardens and seed banks, we are talking about ex situ conservation. आप कभी भी जब भी क्वेश्चन आंसर्स आप या फिर ऐसे fill in the blanks आते हैं, so just do not panic. Do not abruptly start looking into the options. आप पहले इसको अपने हिसाब से आप इसको fill up करिए. Then you start looking, because if you start looking into this पहले, then you will get more confused and you will waste more time. So सबसे easy way है कि आपको क्या करना है, आराम से क्वेश्चन देखिए, आराम से fill up करिए, फिर उसके बाद नीचे options देखना. Next question, dash is the zone of biosphere reserve where there is no human activity or no human is permitted. जैसे आपको मैंने आपको बोला, इसको बोला जाता है core zone बोला जाता है. This is the one which is called as your core zone. Core zone में कोई नहीं आ सकता है, किसी human activity के लिए requirement नहीं होती. Third one, dash refers to planting of new trees where forests have been destroyed. नए trees लगा रहे हैं तो आपको उसको reforest कर रहे हैं, so of course it would be reforestation. Then we have, there is a sanctuary which is Madhumalai sanctuary. ये एक तरफ से Madhumalai sanctuary is very famous because it's a tiger reserve. It's actually a tiger reserve. Tiger Reserve of India. देखो आपको एक नई चीज इसमें पता चली. Madhumalai sanctuary is actually famous for keeping Indian elephants and other creatures also, but majorly इसको Tiger Reserve of India बोला जाता है. This is the one where it is found. It is actually found in Tamil Nadu. ये कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है. That means it is there in Tamil Nadu. Coimbatore एरिया में, तमिलनाडु में you will find Madhumalai sanctuary, जिसमें आपको बड़े बड़े इंडियन एलिफेंट्स तो मिलेंगे, but it is also predominantly called as your Tiger Reserve of India, one of the Tiger Reserves of India. अब आपने फिलअप कर लिया, अब हम ऑप्शंस आसानी से देख सकते हैं. लेट्स सी उसके अकॉर्डिंगली कौन सा हमारा आंसर इसमें फिट बैठता है. करेक्ट आंसर हैज टू बी सी. एक्स सिटू, हमें एक पेयर ढूंढना है, तो हमने एक पेयर ढूंढ लिया, एक्स सिटू एंड योर reforestation. So this was the question from your conservation of plants and animals. Let's quickly move on to the next question. Next question is from a very interesting chapter, that is your cell, the fundamental unit of life. इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैंने फिर से बोला है ये फिलअप है, परेशान नहीं होना है. आप पहले अपना फिलअप भरेंगे आराम से, देन यू विल लुक इनटू द ऑप्शंस. उसका नियर बाय आपको मिल जाता है. फर्स्ट लेट्स क्विकली लुक इनटू द क्वेश्चन. दिस इज द पैराग्राफ गिवन टू यू एंड इट हैज सम फिलअप्स दैट यू हैव टू डू. लेट्स क्विकली डू दोस फिलअप्स फर्स्ट. Vacuole is a space in the dash of a cell. Of course, vacuole is one of your cell organelle. Vacuole is one of your cell organelle, और ये cell organelle कहाँ मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म में. Of a cell which is enclosed by a membrane. Vacuole has a single membrane bound vesicle, or vesicle, or vacuole is simply called as simple single membrane bound vesicle. और जो membrane होता है ना, single membrane, वो किसका होता है? टोनोप्लास्ट का होता है. So it's a single and it is actually टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट का लेयर होता है वो.
ठीक है. नेक्स्ट, वैक्यूल इज फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड, ऑफ कोर्स उसमें वैक्यूल में सारी चीजें भरी होती है तो वो सैप होता है. सैप हैविंग ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंटेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, सारे भरे होते हैं. सो दैट लिक्विड इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल सैप, विच कंटेन्स एवरीथिंग. चाहे शुगर्स हो, सॉल्ट्स हो, ऑर्गेनिक चीजें हो, सारी चीजें होती है. तो इट विल हैव योर शुगर्स ऑल्सो एंड इट विल हैव योर सॉल्ट एज वेल. ये आपने अपना फिलअप कर लिया. अब आपको सारी चीजें यहां दिख रही है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट आंसर चूज करना है. द आंसर इज ऑप्शन ए. हम ऊपर ऑलरेडी फिल कर चुके हैं. देखिए कितना इजी हो जाता है अगर आप पहले आराम से फिलअप भरिए, उसके बाद देन यू कैन लुक इनटू द ऑप्शंस. पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है. इतने आराम से पढ़ना है कि आप एक बारी में ही उसको पढ़ के समझ जाए. You getting panic and reading the questions again and again, it's only killing your time. So the next question that we have is from the chapter Reproduction in Animals. So this is a Venn diagram given to you. एक डायग्राम ऐसा है. इस डायग्राम में इस सर्कल की साइड में लिखा है इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. जैसे हम सिंगल सेल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ जाता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, अमीबा. अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिजन से. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाकी ऑप्शंस भी आपको यहाँ गिवन है, तो हमारा आंसर तो बिल्कुल क्लियर है कि यस, हमने तो अमीबा देखा है. व्हाट अबाउट हाइड्रा, राइजोपस एंड प्लानेरिया? इसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें हम देख लेते हैं. हाइड्रा इज योर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर. राइजोपस इज ऑल्सो मल्टीसेलुलर. प्लानेरिया इज ऑल्सो मल्टीसेलुलर. तो आपका यूनिसेलुलर कौन है? सिर्फ और सिर्फ अमीबा. यहां पर सिर्फ और सिर्फ अमीबा. अब देख लेते हैं भैया, ये पहला तो पहले से ही हमको आंसर पता चल गया, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. अमीबा बीइंग यूनिसेलुलर इन नेचर, इट कैन इजीली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है. इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रा, हाइड्रा जनरली कैसे करेगा? सिंपल बडिंग के थ्रू. आपको ये भी चीजें याद होनी चाहिए. अगर आगे जाके क्वेश्चन आ गया तो, कहीं हम 2023 को ही तो टारगेट कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो देन ये भी चीजें रेडी करनी जरूरी है. राइजोपस, राइजोपस कैसे करता है? राइजोपस इज एक्चुअली एक सैप्रोफिटिक फंजाई है. दिस इज अ सैप्रोफिटिक फंजाई. फंगस है ये, मल्टीसेलुलर है. तो ये सैप्रोफिटिक फंजाई कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? ये रिप्रोडक्शन करेगा एसेक्सुअली. एसेक्सुअली बाय स्पोर्स. लेट्स टॉक अबाउट योर प्लानेरिया. प्लानेरिया आपका मल्टीसेलुलर है. प्लानेरिया इज योर मल्टीसेलुलर. प्लानेरिया का जो साइंटिफिक नेम है, इसको जनरली हम जानते हैं दुगेसिया से. इसका नाम एक्चुअली दुगेसिया है, साइंटिफिक नेम. प्लानेरिया का साइंटिफिक नेम है दुगेसिया. देखो एक और अच्छी चीज आपको पता चली इसमें. So this Dugesia is the one which is Planaria, which belongs to a phylum which is called as flatworms. फ्लैटवर्म है जिसको हम प्लैटीहेलमिन्थिस के नाम से जानते हैं. प्लैटीहेलमिन्थिस. ये इजीली फ्रैगमेंटेशन कर सकता है, इजीली रीजनरेशन भी कर सकता है. तो जनरली ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू और रीजनरेशन के थ्रू भी ग्रो कर सकता है. नाउ यू नो ऑल द ऑप्शंस कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है. So this is the easiest way in order to do any question. Let's quickly move on to the next question that we have. Amoeba? Quickly next question. Okay. So next question is coming from cell, the fundamental unit of life again. Interesting. Let's look into the question. Aradhya was asked by her teacher to list 3 basic features that are found in both prokaryotic and eukaryotic cell without exception.
मतलब उसको कॉमन चीजें बतानी है जो प्रोकैरियोट के पास भी होगा और यूकैरियोटिक सेल के पास भी होगा। ये सारे ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता है। पहली बात, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके पास सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेल के नाम पर उसके पास सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं, बाकी कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियोइड होता है उसके पास। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबको पता है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स हियर। प्रोकैरियोट के पास ये होगा नहीं, हमें कॉमन ढूंढना है। प्रोकैरियोट के पास नहीं होगा, प्रो के पास न्यूक्लियस तो है ही नहीं, उसके पास न्यूक्लियोइड है, साइटोप्लाज्म ही है, तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। सेकंड, साइटोप्लाज्म है यूकैरियोट प्रोकैरियोट के पास, यस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के पास, यस। राइबोसोम, यस। ओह, दिस कुड बी एन आंसर। नेक्स्ट, सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है प्रोकैरियोट के पास, तो ये भी गया ऑप्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगेन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसके पास, तो इससे आगे तो होएगा ही नहीं स्ट्रक्चर। तो अगर देखा जाए द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी हियर। लेट्स लुक इनटू योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Wow, again a question from cell, the fundamental unit of life. You can see a beautiful picture that has been there at my back. So of course आपको पता करना है कि भाई ये सारे क्या काम करते हैं और ये सारे है क्या। पहले इनके नाम लिख लेते हैं कि what are these, so that it becomes again सबसे easy way। इसको देख के don't jump into the conclusion and don't start panicking and looking into the answers। नहीं, पहले आप ये तो देखो ये सारे structures है क्या, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। स्ट्रक्चर्स अगर हम देखते हैं, इफ यू लुक इनटू द स्ट्रक्चर, दिस इज द वन व्हिच इज ऑफ कोर्स योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अ बिगर स्ट्रक्चर, बीच में खाली सा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी चीजें अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स है जो होम्योस्टैसिस बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैक्यूल हियर। दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें ग्राना थाइलाकॉइड का स्टैक्स है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट हियर। And this might not be looking familiar to you, but this is actually ribosome. Ribosomes का main function होता है in order to synthesize proteins. This is the one which actually helps in photosynthesis. Vacuole, it's a huge structure which is definitely सबसे ज़्यादा आपको plant में मिलेगा. Vacuole is the one which actually helps in, it has everything. It has organic, inorganic molecules and it also helps in making the hemostasis, that is the balance, salt ionic balance. बच्चा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीबडी नोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी करेंसी होती है, एटीपी सिंथेसाइज करता है ये। नाउ ये सारी चीजें हमें ग्राउंड बेसिक पता है। अब नाउ लेट्स लुक इनटू द ऑप्शंस। इट सेज कि P इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ओके। Q, R and S आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, नहीं। ये अभी मैंने आपको बोला डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड, P is involved in synthesis of ATP. Agreed, mitochondria है, good. Next, S is involved in the synthesis of protein. ये भी true है. That means ये answer true हो सकता है. Let's look into the other two also. Q says Q is involved, C option, Q is involved in the storage of proteins. Storage of proteins, whereas R is involved in the synthesis of proteins. Not possible. It can store inorganic and organic components, but not of course the bigger structures of your proteins. रही बात R की, R photosynthesis में help करता है, R is not involved in protein synthesis, आपका S is there for the protein synthesis. Option D says R synthesizes lipids where S is involved in storage of lipids. RER अगर आपको पता है, राइबोसोम्स के दो होते हैं, RER जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज योर RER
एंड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस में राइबोसोम्स होते हैं. सो यहाँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं, तो कौन लिपिड स्टोरेज या सिंथेसिस में हेल्प करेगा? दैट इज व्हाट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट वी आर रेफरिंग टू देयर. अग्रीड? सो देखा जाए अब तक का जो हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज P is involved in the synthesis of ATP, whereas S is involved in the synthesis of proteins. चलिए फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. टिश्यूज इज द चैप्टर. टिश्यू चैप्टर जो है, जनरली टिश्यू को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू. हियर वी आर लुकिंग इनटू द क्वेश्चन व्हिच बिलोंग्स टू योर प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू में इफ यू रिमेंबर दो डिवीजन होते थे, सिंपल मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू. इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसी में कॉम्प्लेक्स टिश्यू आ जाता था. उसी से रिलेटेड चलिए ये क्वेश्चन क्विकली पढ़ते हैं कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क अस. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हियर. Statement 1. Parenchyma and collenchyma tissues have thick walls and living cells. Statement 2. Parenchyma forms hard grit of pear fruit and collenchyma forms hard walls of nuts. Options बहुत क्लेवरली दिए हैं और बहुत आपको पीसफुली आराम से इसको अटेम्प्ट करना है. दोनों ऑप्शंस अगर सही हैं, दोनों स्टेटमेंट अगर सही है, ऑप्शन ए इज द आंसर. सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, बी ऑप्शन. सी में स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, 2 सही है. सी और डी दोनों ही गलत है. ध्यान से सुनिए. जब हम बात करते हैं पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की, पहली बात, पेरेन्काइमा का जो वॉल होता है, wall of parenchyma, it's thin, सेलुलोज का बना होता है. थिन होता है, सेलुलोज का बना होता है, थिक नहीं है. पहला स्टेटमेंट गलत है. जबकि कोलेन्काइमा का थिक होता है. वॉल ऑफ कोलेन्काइमा थिक होता है और पेक्टिन का बना होता है. तो देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है हमारा. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो ये और ये, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा. राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. पेरेन्काइमा फॉर्म्स हार्ड ग्रिड ऑफ पियर फ्रूट एंड कोलेन्काइमा फॉर्म्स हार्ड वॉल्स ऑफ नट्स. अगर आपको याद है, जो ग्रिटीनेस होता है पियर फ्रूट या फिर जो अमरूद होता है, उसका जो ग्रिटीनेस आता है, वो ग्रिटीनेस क्यों आता है? क्योंकि उसमें स्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स होते हैं. वो स्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स कौन देता है? स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरिड्स, स्क्लेरेन्काइमा. क्वेश्चन देखिए ध्यान से. स्क्लेरेन्काइमा है जो ग्रिटीनेस प्रोवाइड करता है. देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है. तो हमारे लिए सबसे फिट ऑप्शन कौन सा है, जिसमें स्टेटमेंट 1 भी गलत है और मेरा स्टेटमेंट 2 भी गलत है? D is the best suited answer here. Let's look into the next question. Oh, very good. Next question is also from tissues. टिश्यू में ये आपको एक पिक्चर दे रखा है. पहले तो आराम से कामली बैठ कर ये देखिए कि भैया पिक्चर दोनों है किसकी. इसमें पहले से मैं आपको डिफाइन करके बता देती हूँ ये पिक्चर में दिख क्या क्या रहा है. इस पिक्चर में सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे सेल्स दिख रहे हैं. हम एक बार वाई देखते हैं, फिर देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द एक्स स्ट्रक्चर. ये जो वाई वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज वाई. इस वाई में क्या क्या चीजें दिख रही है? आपका वाई ऐसा दिख रहा है. ऐसे बहुत सारी चीजें दिख रही है. कहीं पर ये दिख रहा है, कहीं पर ऐसा दिख रहा है. ये जो बीच में ऐसे ऐसे चीजें दिख रही है ना, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फैट ग्लोब्यूल. ये फैट ग्लोब्यूल है. ये न्यूक्लियस है. ये साइटोप्लाज्म है. तो हम कौन सा टिश्यू देख रहे हैं? हम देख रहे हैं एडिपोस टिश्यू.
वी आर लुकिंग इनटू एडिपोज टिश्यू। तो ये एनिमल किंगडम का है जो हम देख रहे हैं, एडिपोज टिश्यू। ये तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा वाई है। अब जरा एक्स में देख लेते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली आपको जाइलम या फ्लोएम में दिख रहा होगा। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जाइलम है या फ्लोएम है? एक बार ये स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं एनलार्ज दिखाऊं, यू विल सी some structures like this. ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है इसमें। पहली बात, जब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, जाइलम के पास जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है। वैसे फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा होता है। सिंपल उनके बीच में क्या होता है? एक्सटीवी। जाइलम के पास ट्रकीड्स और वेसल्स होते हैं, फ्लोएम के पास होता है कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। इसलिए हम फ्लोएम को जब भी पढ़ते हैं हम पीसीएस बोलते हैं, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ये जो साथ में खड़े हैं ना ये लोग, ये क्या है? दिस इज योर कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। और ये बीच में ये जो छोटे छोटे प्लेट्स दिख रहे हैं, दीज आर दी प्लेट्स, these plates are called as sieve plates। और इस sieve plates में क्या है? sieve pores है। छोटे 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 जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, these are sieve pores। और ये पूरा का पूरा क्या है? this is sieve cell। और sieve tube। इसी से पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है किसका है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? दिस होल स्ट्रक्चर इज ऑफ योर फ्लोएम। फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है और वो खाने के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। खाना लीफ से, जहां सोर्स से सिंक तक ले जाता है, हर जगह बाई डायरेक्शनल, हर जगह ले जाता है। इसलिए the reason why I have given you this explanation so that it will help you to understand कि हम अब क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। ये चीज आपको पता चल गई कि भैया ये आपका फ्लोएम है और वो आपका एडिपोज टिश्यू है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अब थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस रिगार्डिंग दीज टिश्यू। X इज एन एनिमल टिश्यू, हो ही नहीं सकता। X प्लांट टिश्यू है, तो ये पहले वाला तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड, X इज द मेजर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। मेजर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं हो सकता, वो मेजर वाटर कंडक्टिंग नहीं, ये तो फूड है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड, X is composed of all dead cells, Y is composed of all living cells. Not all, all नहीं, सारे के सारे डेड और सारे के सारे लिविंग टिश्यू नहीं है, ये भी गलत है। X conducts water in vascular plants in downward direction. Of course ये X जो है वो फ्लोएम है, वाटर कंडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। फिफ्थ, in animals Y is found below the skin that forms a shock absorbing cushion around the internal organs. Agreed, adipose tissue है, तो adipose tissue का काम ही होता है shock absorption करना। And stores fat to insulate the fat or the body against heat loss. ये सही है। इन पांचों के पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली मेरा फिफ्थ ऑप्शन सही है। तो जो मुझे नीचे ऑप्शंस गिवन है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Now let's quickly move on to the next question. The next question is from the tissues again. Here you can see a very beautiful picture which is showing your neuron. First, before we go into the detail, let's quickly see what they are asking. They are asking us to identify X, Y and Z. Let's quickly mark them that what are these X, Y and Z. ये जो structure है, the Y can clearly say that these are the dendrites. Dendrites are the ones which actually receive the
और दे टेक दी नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट करना है, दे रिसीव इट. सिमिलरली वो रिसीव करके एक्स इज एक्चुअली योर सेल बॉडी, जिसको जनरली सोमा भी बोलते हैं. सेल बॉडी उसे रिसीव करके आगे एक्सॉन के पास ले जाएगा कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कर दीजिए. सो Z इज द वन विच इज योर एक्सॉन. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. डेंड्राइट ने लिया, सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन से ट्रांसमिट होता हुआ आगे गया. अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. व्हाट आर दीज ऑप्शंस एक्चुअली आस्किंग? ऑप्शन ए, X is the cell body having nucleus and cytoplasm. X is the cell body having nucleus and the cytoplasm. You have to find out the incorrect statement. ये तो true है. This is correct. Option B says, why are dendrites, which are branch extensions of a cell body? Of course, you can clearly see there. So this is also true. Z is an axon, which is a cylindrical processes arising from X. जो axon होता है ना, axon actually ऐसा दिखता है. Cylindrical process, उसने बिल्कुल सही बोला है. This looks like this. Axon. Axon के अंदर होता है एक्सोप्लाज्म. और आपको यहाँ क्या मिलेगा? If you remember, you get Schwann cells. Schwann cells मिलेगा और आपको यहाँ पर माइलिन शीथ मिलेगी. माइलिन शीथ, Schwann cell, एक्सोप्लाज्म. एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कहां से निकल रहा है? आपके एक्स से निकल रहा है. तो देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सही है. ऑप्शन डी, वाई ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स. वाई कैसे ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्स? वाई इज एक्चुअली डेंड्राइट विच इज सपोज टू रिसीव द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, वेयर जेड रिसीव्स इम्पल्सेस. नहीं, जेड तो ट्रांसमिट करेगा. लेकर कौन आएगा? आपका डेंड्राइट्स लेकर आएंगे. So according to the question asked, the correct answer has to be option D. ये है incorrect one. Let's see the next question. What does it says? Next question is your why do we fall ill? ये चैप्टर में जनरली आपको सारे के सारे डिजीजेस से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं. ये आपको 4 ऑप्शन तो दिख रहे हैं, लेकिन इस 4 ऑप्शंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड. Let's quickly look into the question first. First, read the giving statements and select the correct one. सबसे पहला ऑप्शन है acute disease persists for a long time hence causes prolonged ill health or illness. acute का मतलब होता है जो short term होता है. acute means short term. जैसे हो गया fever, cough. तो करेक्ट ऑप्शन है. ये तो इनकरेक्ट है. वो प्रोलॉन्ग सिकनेस नहीं दे सकता है. प्रोलॉन्ग सिकनेस का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज कैंसरस ग्रोथ, समथिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, बाय बर्थ डिसऑर्डर, ये बोल रहे हैं. तो ये ऑप्शन तो गलत है. नेक्स्ट ऑप्शन, एक्वायर्ड डिजीजेस आर फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट सिंस बर्थ. अग्रीड कि एक्वायर्ड डिजीजेस, आप बाहर से डिजीजेस ले सकते हो, जिसमें आपका जनरली आप फीवर ले सकते हो, कोई भी डिजीज ले सकते हो, कोई भी कुछ भी रिलेटेड कोई भी डिजीज ले सकते हो, लेकिन वो बाय बर्थ नहीं होता है, वो आफ्टर बर्थ होता है. बाय बर्थ नहीं होता. बाय बर्थ होता है तो वो कॉन्जिनेटल होता है, जो जनरली जैसे कॉन्जिनेटल हार्ट डिजीज होता है, बाय बर्थ उसे बोलते हैं. तो देखा जाए तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है. क्लेफ्ट पैलेट. पैलेट मीन्स ये जो लिप वाला एरिया होता है, ये आधे से कटा हुआ होता है और इससे फोल्डेड होता है. ये जो कटा हुआ हिस्सा होता है, ये जनरली एनवायरमेंटल फैक्टर्स और देखा जाए तो जेनेटिक फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है. व्हेन अ मदर इज एक्सपेक्टिंग, अगर मदर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑफ अ मदर स्टार्ट स्मोकिंग और स्टार्ट्स टेकिंग एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी केमिकल विच इज रियली नॉट गुड फॉर द बर्थ ऑफ और फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, डेफिनेटली तब एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स, इन दोनों से क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है. ये तो सही है, लेकिन इसका दूसरा क्या है? Whereas hemophilia is caused due to gene mutation, of course. Hemophilia, which is also called as a bleeder's disease, जिसमें blood clot नहीं होता, ये genetic mutation से होता है. This is correct.
व्हाट अबाउट दिस वन? क्या ये करेक्ट है? अगर ये करेक्ट है तो व्हाट अबाउट दिस वन? AIDS and German measles cannot be transferred to baby from infected mothers. This is something which we are calling as, or we are talking about viral disorders or viral diseases. Especially in case of AIDS, if the mother is carrying the AIDS virus, definitely it will be easily transmitted to the mother also, from the mother to the child also. देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. तो हमारे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज योर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन गिवन यू अ वेन डायग्राम. इस वेन डायग्राम को बहुत ध्यान से समझेंगे, पहले कंफ्यूज नहीं होना देखते ही कि ये सारी चीजें क्या है, ध्यान से देखेंगे. इस वेन डायग्राम में बोला है कि जो एक्स है इट इज रेफरिंग टू ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज होता है, एवरीबडी नोज दैट, राइट? अब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है? ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर. एड्स भी क्रॉनिक डिसऑर्डर है, वायरल डिसऑर्डर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है. मतलब वाई के पास ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा. अब इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, चूज द करेक्ट वन. एक्स इज ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस वायरल है? नहीं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? नहीं. हाँ, डायरेक्ट कांटेक्ट में, बट स्पेसिफिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है. तो हमारे पास बचा क्रॉनिक डिजीज फॉर एक्स. एक्स यू ये बिल्कुल सही है. वाई का देखते हैं. वाई में कह रहा है वी मीन्स वो तीनों कवर कर रहा है. क्रॉनिक भी है, ये तीनों कवर कर रहा है. दैट मीन्स वाई आपका एड्स है, वायरल डिजीज है, क्रॉनिक है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है. सो बाकी ऑप्शंस तो देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही ऑप्शन से आपको पता चल रहा है दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ योर नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में वी जनरली टॉक अबाउट what is the best soil for the growth of a plant. How can we conserve water और how can we ensure कि अगर हमारे पास ज़्यादा water की availability नहीं है तो हम कौन से crops grow कर सकते हैं. So let's talk more in detail about it. Natural resources में let's see the first question here. Read the given paragraph. Soil L is well aerated but cannot hold much water. जो soil के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, हाउ विल इट प्रोवाइड द ग्रोथ टू द प्लांट. प्लांट को मॉइस्चर, ऑक्सीजन, वाटर चाहिए होता है, वो सॉइल के थ्रू ही मिलता है. सॉइल के थ्रू ही उसको मिनरल्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पानी के थ्रू मिलते हैं. जब वो वाटर ही होल्ड नहीं कर सकता तो आई डोंट थिंक सो दिस सॉइल एल इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ. सिमिलरली सॉइल एम है जो कि वेल एरिएटेड है एंड हैज वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अग्रीड. So soil M is a good contestant in order to grow the plant. What about soil N? Soil N has excellent water holding capacity but it is poorly aerated. अगर एरिएशन नहीं होगी, रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है. जब आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कैसे ग्रो करेगा. तो अकॉर्डिंग लुकिंग इनटू ऑल दीज थ्री, soil M is the best suited one. Let's see what are the options asking us. Soil M is commonly found in those regions where xerophytes are abundant. Soil M. Xerophytes उसे बोला जाता है जहां पर पानी, जैसे आपका कैक्टस हो गया, अपनशय हो गया, जहां पानी कम होता है, उसमें बोला गया है कि ये बहुत abundant में मिलता है, which is not true. Soil N is best suited for growing garden plants. नहीं, क्योंकि soil N में भैया वो एरिएशन ही नहीं कर पाएगा तो आपका रूट्स मर जाएंगे. Soil L is best suited for making pots, statues and toys. No, not at all. What about soil L and N are not suitable for plant growth, which is true. Soil L and N दोनों के दोनों suited नहीं है plant growth के लिए, लेकिन soil M अच्छा है, उसके पास एरिएशन भी अच्छा है, उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर. नेक्स्ट सेक्शन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, ये अचीवर सेक्शन. नो नेगेटिव मार्किंग. अचीवर सेक्शन में हर क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड वेन डायग्राम. डरना नहीं है वेन डायग्राम देखकर, बहुत इजी वे में करना है.
आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, नाउ लेट्स क्विकली लुक इनटू दिस क्वेश्चन. The next question that we have, it is from the cell chapter, that is the cell and the fundamental unit of life. So this question, let's try to understand what this question is asking us. पहली बात हम ये थोड़े गोल गोल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. It is referring कि हमारे पास PQR है. ये सारे के सारे PQR is encircled in a domain which says unicellular structure. Which says ये सारे के सारे डोमेन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और हमको ढूंढना है कि PQR किसको फिल करता है. यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं. यहाँ पर अगर P को देखें तो P को ये कह रहा है कि वो यूनिसेलुलर होना चाहिए, लेकिन वो उसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी होना चाहिए, उसके पास सेल वॉल भी होना चाहिए और उसके पास क्लोरोफिल भी होना चाहिए. न्यूक्लियस होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए, प्लस क्लोरोफिल भी होना चाहिए. अब Q क्या कह रहा है? Q कह रहा है कि भाई उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए प्लस सेल वॉल होना चाहिए, और R कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल ही चाहिए, लेकिन ये सारी की सारी कैटेगरी फिट होनी चाहिए उस ऑर्गेनिज्म के पास जो यूनिसेलुलर है. चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन A says that P could be Chlamydomonas or Aspergillus. Chlamydomonas is a structure that we are referring to algae, which is by default unicellular है. Agreed? Green है, photosynthesis कर सकता है. P ने बोला था न्यूक्लियस होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए. वेरी गुड, सारी चीजें सही है, लेकिन इसमें लिखा है कि P could be Chlamydomonas or Aspergillus. Aspergillus is actually a fungi, और fungi के पास सेल वॉल न्यूक्लियस होगा, लेकिन वो क्लोरोफिल पिगमेंट कैरी नहीं करता. तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. देन वी हैव Q could be Volvox और Penicillium. Volvox की कुछ कॉलोनीज यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर. Volvox भी एल्गे की कैटेगरी में आता है. अग्री, चलो एल्गे की कैटेगरी में है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, हैप्पी. लेकिन अगेन पेनिसिलियम दोबारा क्या है? फंजाई. इसलिए Q could be एल्गे, Volvox, पेनिसिलियम. क्यू ने क्या बोला है कि न्यूक्लियस होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए, क्लोरोफिल. पेनिसिलियम के पास दोबारा क्लोरोफिल नहीं है और वो यूनिसेलुलर तो बिल्कुल भी नहीं है. ऑप्शन सी कह रहा है कि आर कुड बी लैक्टोबैसिलस और नाइट्रोसोमोनास. दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? दोनों के दोनों बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है. बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, अग्रीड. किसने बोला? आर. यूनिसेलुलर यूनानिमसली एक चीज के लिए बोला गया है. R could be lactobacillus और nitrosomonas. Lactobacillus, nitrosomonas दोनों बैक्टीरिया है. R ने सिंपल क्या बोला है कि वो यूनिसेलुलर होना चाहिए और सेल वॉल होना चाहिए. दोनों के पास सेल वॉल है, तो ये भी सही है. डी ऑप्शन क्या कर रहा है? डी ऑप्शन कह रहा है कि Q could be Clostridium and R could be Euglena. यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है, एक स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर, प्रोटिस्ट है, विच इज इन बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल. इसके पास एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स भी है और प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स भी है. आर की बात कर रहे हैं. यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता है, इसके पास एक प्रोटीन पेलिकल लेयर होती है. तो यूग्लिना के पास सेल वॉल है नहीं, तो ये आर तो हो ही नहीं सकता. दूसरा, Q could be Clostridium. Clostridium is again we are referring to bacteria. बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. तो देखा जाए ये ऑप्शन भी गलत है. सो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस गिवन टू अस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी सी ऑप्शन हियर. Now let's quickly move on to the next question that we have. The question is from why do we fall ill? If you look into the complete chart here, what we can see, there are certain diseases, उनके causative agents और mode of transmission भी given है. अगर measles को देखें, measles is the disease which is definitely caused by your virus. measles virus से होता है, हम लिख देते हैं. ऑप्शंस अभी देखेंगे, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं causative organism जो हमको याद है. Of course, mode of transmission is your air. ऐसा बैक्टीरियल डिजीज जो वाटर एंड फूड से हो सकता है. ये सारे बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज, तो फूड और वाटर से होता है. इसमें बहुत सारे डिजीजेस है, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक द हेल्प हियर. उससे पहले हम ये दो भर लेते हैं जो इजी होता है. डेंगू इज द वन विच इज ऑफ कोर्स वायरल है, वायरस से है. मलेरिया प्रोटोजोन से हुआ है. वायरस
का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऑफ कोर्स देयर इज अ मस्कीटो इन्वॉल्व हियर, क्योंकि वो वेक्टर होता है, वो लेकर जाता है। थोड़ा बहुत हेल्प मिल गया। अब हम भरेंगे मीजल्स वायरस से होता है, तो P हैज टू बी वायरस। मेरे पास वहां 3 कंटेंडर है, 1, 2 एंड 3। Q आ जाता है, Q बैक्टीरियल डिजीज है जो वाटर और फूड की वजह से होता है, तो Q बैक्टीरियल है। डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेरा, लेकिन 2 कॉलेरा है हमारे पास यहाँ पर। कॉलेरा से होता है ये। देन वी हैव, ऑफ कोर्स मेरे पास अभी यही ऑप्शन बचा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। डेंगू वायरस से होता है, मस्कीटो उसका ट्रांसमिशन है, मतलब जो मस्कीटो उसको लेकर जाता है। देन वी हैव मलेरिया, मलेरिया इज अ प्रोटोजोन, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, मस्कीटो कैरियर है। So according to the question, the correct answer is option C here. कितने सारे क्वेश्चंस हमने बहुत इजी वे में हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए कहाँ किया है, हमने किया है ये सारी चीजें माय क्लासरूम प्लेटफॉर्म में। इससे रिलेटेड इफ यू रियली वांट टू सी मोर concept clarity, you want to see more questions for your previous year question papers, be it biology, physics, chemistry, maths, what you can do, you can easily visit us with this website, that is your student.myclassroom.digital, or there is a simple tablet app through which also you can connect to us. Also, you can easily get all the information, or you can ask your questions, or you want to have certain doubts, you can easily put those doubts and those questions in the comment section below and write down about those questions, and we will be happy to help you apart from all the questions that we have discussed here. We have our Instagram handles and your Facebook handle here. These IDs are definitely for you so that you can easily look into this and ask certain questions there. आप किसी भी वे में कहीं से भी आप कोई भी चैप्टर रिलेटेड क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So this is me, your teacher Tanisha, signing off for today. You guys have a wonderful day ahead. Bye bye guys, take care.